Assalamu alaikum. Students, we are to study chapter 2 today. That is about cell division. In this chapter, at first we shall study about mitosis and meiosis, while later on, heredity will also be discussed. And at the end of chapter, there will be exercise of this chapter that will be discussed in detail. So before starting discussion about mitosis and meiosis, I would like to explain structure of cell. It is an animal cell. This diagram is representing animal cell. The difference between animal and plant cell is there that in plant cell, cell wall is also there outside the cell membrane. Whereas in this diagram, you can see here, cell membrane is the outermost boundary. And inside the cell membrane, what is there inside the cell membrane? Cytoplasm and nucleus. In the cytoplasm, cell organelles are present, which are centrioles, mitochondria, Golgi bodies are there, and other organelles, they are present. Now, what is nucleus? That is present in the center of the cell. Nucleus is present at the center of the cell. This one. Here you can see it is nucleus. This one is the whole nucleus that is surrounded by nuclear membrane. And inside the nucleus, this structure is the nucleolus, while these are chromosomes. These chromosomes are made up of DNA and proteins. DNA that stands for deoxyribose nucleic acid. Here it is, these are chromosomes which are made up of DNA and proteins. DNA is the abbreviation of deoxyribose nucleic acid, and other proteins are there. Other structures, especially which are involved in cell division, these are centrioles. Here, two pairs of centrioles have been shown in this cell. One pair of centrioles is present in each cell, while during cell division, this pair of centrioles divides and forms two pairs. It forms two pairs. Each pair moves towards opposite poles, which you will see later on. They form spindle fibers, which are necessary for cell division. I am repeating it. ये भी सेल स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का. इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है. ये इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है. इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है. सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये जो सुराख आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोपोर्स कहलाते हैं. उसके बाद इसमें ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की एब्रीविएशन है. इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, ये लिक्विड पार्ट है सेल का, जेली लाइक फ्लूइड होता है, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनमें ये सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह,
Golgi bodies, ribosomes, other organelles are also present here. But especially जो कि हमने यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस में यूज करने हैं, इस सेल के जो पार्ट्स, वो ये सेंट्रियोल्स को आपने ज़हन में रखना है, ये वाले पार्ट, और न्यूक्लियस। ये दो चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होंगी इसमें सेल डिवीजन के अंदर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन होगी एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन। It was about cell structure. Now, types of cell division. There are two types of cell division. One is mitosis and other is meiosis. Mitosis is the type of cell division in which one parent cell divides into two daughter cells. One parent cell divides into two daughter cells. Here it is clear. It's a parent cell and it is dividing into two daughter cells in such a way that the number of chromosomes which were there in the parent cell, they are exactly similar as are present in the daughter cells. In each daughter cells, number of chromosomes is exactly equal to that of parent cell. ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, माइटोसिस, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है. इसमें डीएनए रेप्लिकेशन एक्स्ट्रा these steps will be there, and at the end of all these steps two daughter cells are formed. कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की तादाद जिस तरह पेरेंट सेल में देखें यहाँ पे 4 शो की हुई है, तो आगे डॉटर सेल्स में भी हर डॉटर सेल में 4 ही शो की हुई है. मींस के क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो सेम रहती है, जितनी पेरेंट सेल के अंदर थी उतनी ही यहाँ पे जो है हर डॉटर सेल में शो हो रही है. Now, this mitosis, which results in the formation of two cells, it occurs in somatic cells. Now, what are somatic cells? Inside our body, two types of cells are there. One are their germline cells and others are somatic cells. In germline cells, meiosis takes place. And what is this meiosis? Meiosis is a process of cell division that results in the formation of 4 daughter cells. Meiosis के अंदर एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और इस तरह से डिवाइड होता है कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल की निस्बत आधी रह जाती है. जैसे आप यहाँ पे देखें कि 4 chromosomes have been shown here in the parent cell, while in each daughter cell there are 2 chromosomes. पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे. जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये लिया गया है कि अगर उधर 4 क्रोमोसोम थे तो यहाँ जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो हर सेल के अंदर आधी तादाद है उसकी निस्बत, इधर 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं. ये रिडक्शन डिवीजन भी कहलाती है. ये डिवीजन जो है इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, सॉरी जर्म लाइन सेल्स. मियोसिस जो है ये जर्म लाइन सेल्स में होती है, जबकि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में. तो जर्म लाइन सेल्स कौन से हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. एनिमल्स के अंदर ये स्पर्म्स और एग्स हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर ये स्पोर्स होते हैं. तो इन जर्म लाइन सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, जबकि सोमैटिक सेल्स, अब इन सेल्स के अलावा बाकी जितने सेल्स हैं, यानी जर्म लाइन सेल्स के अलावा बाकी जितने सेल्स हैं बॉडी के, उन सबको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और उन सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है. माइटोसिस के रिजल्ट में आपने देखा कि 2 सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है जैसी कि पेरेंट सेल में थी.
जबकि मेयोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है डॉटर सेल्स में। एक पेरेंट सेल से जो 4 डॉटर सेल बनते हैं, हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत आधी रह जाती है। अब हम देखते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है इसकी। माइटोसिस जो है, इसके रिजल्ट में ग्रोथ होती है। ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ना। चाहे वो पौधा है, चाहे वो एनिमल है, उसके साइज में इजाफा। आप देखें कि बच्चा छोटा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, तो ये ग्रोथ है। ये ग्रोथ कैसी हुई? माइटोसिस के जरिए। उसके बॉडी सेल्स जो हैं उनमें माइटोसिस हुई, सेल्स की तादाद बढ़ी, तादाद बढ़ने से फिर हर सेल का साइज भी बढ़ता है बिफोर इट्स नेक्स्ट डिवीजन। तो रिजल्ट क्या होता है? ग्रोथ अकर्स। उसके बाद है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट क्या है? worn out cells of the body are replaced. worn out cells of the body are replaced. अभी बेटे किसी बच्चे ने हैंड्स रेज नहीं करने, चैट सेक्शन बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर किसी स्क्रीन आपकी डिस्टर्ब ना हो, स्क्रीन पे अगर ये चैट सेक्शन आता है आप उसको मिनिमाइज कर लें। ये टॉपिक कंप्लीट करके मैं आपको चांस दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रोथ के बाद सेल रिप्लेसमेंट बता रहा था, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट सेल्स। जो भी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब हमारी स्किन के जो स्केल्स हैं, दे कॉन्टिन्यूअसली गो ऑन स्लोइंग। सो ये हमारी जिल्द के जो सेल्स हैं वो मुसलसल उतरते रहते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली स्लोड ऑफ एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस। उसके बाद तीसरा इसमें जो प्रोसेस बताया वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन कहते हैं रीगेनिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हीलिंग ऑफ वुंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इस तरह कुछ दूसरे एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे मैं स्टार फिश की एग्जांपल दूं कि उसका अगर कोई एक आर्म कट जाता है तो वो दोबारा बन जाता है। सेम इज द केस विद स्लेमेंडर। अगर उसकी टेल जो है वो कट जाती है तो रीजनरेट हो जाती है। इसके बाद है मियोसिस की सिग्निफिकेंस। इसके रिजल्ट में क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन काइंड। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी तरह के जानदार जो पैदा करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर मियोसिस से कैसे होती है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स, वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी आधी रह जाती है। when these gametes, these are called gametes, sperms and eggs, when they combine with each other and form zygote, then diploid number of chromosomes is restored. जब ये आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनता है तो स्पीशी के अंदर जो टोटल तादाद होती है क्रोमोसोम्स की वो पूरी हो जाती है। अगर ये मियोसिस ना हुई होती तो क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती। तीसरा इसका स्टेप है वेरिएशंस। मियोसिस के दौरान जेनेटिक मटेरियल की शफलिंग होती है और इस शफलिंग के रिजल्ट में वेरिएशंस पैदा होती हैं। वेरिएशंस के डिफरेंसेस शोन बाय ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जोन ऑफ अ स्पीशी। जिस तरह कि आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप अपनी फैमिली में देखें कि बहन भाई जो हैं वो एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते, बल्कि डिफरेंसेस होते हैं। जो शक्ल और सूरत में फर्क है, ये वेरिएशंस हैं। नाउ आई एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। पहला इसका इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर देखें बेटे, ये सेल है जो कि प्रिपेयर हो रहा है फॉर सेल डिवीजन। इसमें अब ये 2 क्रोमोसोम शो किए गए हैं। ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं इंटरफेस के दौरान देखें इसकी डुप्लीकेशन होगी है। आगे जो न्यूक्लियर डोमेन है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, माइटोसिस में एक्चुअली ये 2 स्टेजेस हैं। एक है न्यूक्लियर डोमेन, दूसरी है साइटोकाइनेसिस।
न्यूक्लियर डिवीजन जो है इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये डिफरेंट स्टेप्स आते हैं और इनके रिजल्ट में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तरतीब से कि यहां पे देखें दो क्रोमोसोम थे शुरू में, तो अब आगे जो है ये आप यहां पे देखें दो क्रोमोसोम शो किए गए हैं, जबकि इधर वो डबल हो चुके हैं, डुप्लीकेशन हो गई क्रोमोसोम्स की। यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुई है, इससे सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका पेयर होता है, डिवाइड होकर दो पेयर बना देता है जो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स इन्होंने बना दिए हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये क्रोमोसोम अब अटैच हो गए हैं। क्रोमोसोम जिस जगह पर, ये आप देखें ये क्रोमोसोम डबल थे, दो दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल, इनके दोनों दो दो हिस्से जो हैं इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। यहाँ पे एक एक क्रोमेटिड था, यहाँ पे दो दो क्रोमेटिड हैं। दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर वाली जगह पर आपस में मिले होते हैं सेंट्रोमियर के जरिए, और सेंट्रोमियर के अंदर एक कैनेटोकोर जगह होती है जिस जगह स्पिंडल फाइबर्स मिलते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ये मेटाफेज स्टेज कहलाता है, जहां पे मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर वो अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इनको, ये पुल करेंगे इनको सेंट्रोमियर को। रिजल्ट क्या होगा कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। अब आधे क्रोमेटिड जो है वो एक पोल की तरफ और आधे जो है वो दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन जब यहाँ कंप्लीट होती है तो सेल मेम्ब्रेन के दरमियान से, सेंटर से जो है, यहाँ सेल के सेंटर से सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। एक शैलो सा ग्रूव बनता है that deepens and ultimately divides a cell into two parts. It is called cytokinesis in animal cells. In animal cells, it is cytokinesis. In animal cells, it is the result of this constriction of cell membrane. While in case of plant cells, cytokinesis occurs by formation of phragmoplast in the center that extends to the boundary and ultimately divides the cell into two. एनिमल सेल्स में बेटे साइटोकाइनेसिस जब होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन पिचक जाती है दरमियान से और सेंटर में आकर मिल जाती है, दो सेल बन जाते हैं, जैसा ये आप देख रहे हैं दो सेल बन गए हैं। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनता है और फ्रेगमोप्लास्ट के रिजल्ट में क्या होता है, ये दो सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। अब मैं आपको इसी प्रोसेस की एनिमेशन एक दिखाता हूं, सबने तवज्जो से देख लेनी है। मटेरियल की कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम्स बनेंगे थर्ड लेग स्ट्रक्चर्स में। अब ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज पे देखें, ये क्रोमोसोम जो कि डिप्लॉयड हो, डबल हो जाते हैं, इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है और डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये जो आप थ्रेड्स देख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के अक्रॉस ये क्रोमोसोम्स अटैच होंगे और जिस जगह अटैच होते हैं ये सेंटर में देखें, ये सेंटर में ये प्लेट जो बन रही है इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस मेटा बेटे मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेजेस ऑफ मियोसिस को। इसमें देखें ये पेरेंट सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, ये इंटरफेस का स्टेज है। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो रही है और क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है। हर क्रोमोसोम इधर जो स्टार्ट में आप देख रहे हैं तो एक एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पे उसके दो दो क्रोमेटिड बन जाते हैं और वो सेंट्रोमियर वाली जगह पर आपस में अटैच होते हैं। और पेयरिंग भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हो जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम उन्हें कहते हैं जो शक्ल सूरत में एक जैसे होते हैं। पेयरिंग के बाद ये अगला स्टेज जो है और मेटाफेज का आता है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं सेंट्रोमियर्स के जरिए। सॉरी जो सेंट्रियोल्स हैं जिन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। सेंट्रोमियर तो वो जगह होती है जिस जगह ये क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं। ये सेंट्रियोल्स के पेयर्स हैं जो अपोजिट पोल्स पे हैं।
पहुंचे हैं और इनके जरिए स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बाद जो पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। हर स्पिंडल फाइबर के साथ एक एक पेयर अटैच होता है। फिर ये स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं सेंट्रोमियर्स को, और सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, ये एक डिफरेंस यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे सेंट्रोमियर की डिवीजन मियोसिस 1 में नहीं होगी। यहाँ पे जो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो अलग होंगे। मियोसिस 1 के अंदर सेंट्रोमियर्स की डिवीजन होती है, या फिर यहाँ पे जो है मियोसिस 2 के अंदर भी आपको वैसी डिवीजन नजर आएगी, सेंट्रोमियर की डिवीजन। मियोसिस 1 के अंदर सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। आधे क्रोमोसोम एक साइड पे, आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पिचक जाती है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। फिर म्यूटेट 2 डिवीजन है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। हर यहाँ पे बनने वाला जो सेल है उसे 2-2 आगे सेल मजीद बन जाते हैं, तो इस तरह टोटल 4 सेल बनते हैं। एक पेरेंट सेल से 4 सेल बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद हर डाटा सेल में आधी होती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अब इसके बाद मैं आपको इसकी एनिमेशन शो करता हूं। एनिमेशन मैं आपको पूरी स्क्रीन पे शो करता हूं ताकि सब आप देख सकें। अब आपको एनिमेशन वाज़ेह नजर आएगी मेयोसिस की। ये आप देखें, ये मेयोसिस के स्टेजेस शो किए गए हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन है इधर तक, उसके बाद ये सेकंड म्यूटेक डिवीजन है। नीचे माइटोसिस को शो किया गया डिफरेंस को वाज़ेह करने के लिए। मियोसिस के दौरान एक सेल से 4 सेल बन रहे हैं, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। एक ये डिफरेंस है। दूसरा कि ये डिप्लॉयड होते हैं जबकि वो हैप्लॉयड होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। हैप्लॉयड मीन आधी तादाद क्रोमोसोम की, डिप्लॉयड मीन डबल तादाद। उसके बाद ये मियोसिस 1 में इंटरफेस को शो किया गया है। ये जो G1 फेज शो किया गया, S फेज शो किया गया है, और G2 फेज जो है, G मीन गैप 1, फिर S सिंथेसिस फेज होता है, फिर G2 फेज से आगे। तो इन स्टेजेस के दौरान, इस इंटरफेस के दौरान सेल जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो जाता है सेल डिवीजन के लिए। आगे आप देखें, ये सेल न्यूक्लियर डिवीजन अब स्टार्ट होगी इसके बाद, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है। ये डुप्लीकेशन हो चुकी है क्रोमोसोम्स की। और डुप्लीकेशन के साथ साथ इनकी पेयरिंग भी होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। जो शक्ल सूरत में एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उनकी पेयरिंग भी होनी है, जैसे सिनॉप्सिस कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेंट्रियोल हैं, उन एक पेयर था, डिवाइड होकर 2 पेयर बने जो ये अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये शो किया है कि ये पेयरिंग है, ये क्रॉसिंग ओवर जिसको शो किया गया है। क्रॉसिंग ओवर में क्या है कि सेगमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ये देखिए, सेगमेंट्स इंटरचेंज हुए, यहीं से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और वेरिएशंस पैदा होती हैं, डिफरेंसेस पैदा होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो गया है। सेंट्रियोल्स डिवाइड हुए, 2 पेयर सेंट्रियोल के बने। ये देखें, अपोजिट पोल्स पे पहुंच रहे हैं और पहुंचकर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो कि अब पेयर्स बन चुके थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो यहाँ पे अटैच होंगे। यहाँ पे ये कुछ चीजें जो बताई गई हैं, ये देखिए, कैनेटोकोर वो जगह है सेंट्रोमियर की जिस जगह दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं।
और सेंट्रोमियर की ये जगह काइनेटोकोर वो होती है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये आपको माइटोसिस का बताया गया है सिर्फ डिफरेंस वाजे करने के लिए कि माइटोसिस में सिर्फ एक क्रोमोसोम जिसके 2 क्रोमेटिड होते हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है, जबकि मियोसिस के अंदर ये देखें ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो कि स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट आप देखें, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अलोंग द मेटाफेज प्लेट। ये सारे क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ये आप देखें यहां पे अलोंग द मेटाफेज प्लेट, ये मेटाफेज प्लेट है जिसको वर्टिकल लाइंस में शो किया गया है। इसके ऊपर अब ये सारे क्रोमोसोम जो कि पेयर्स हैं वो अरेंज हो चुके हैं। अब इसके बाद ड्यू टू पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये जो पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये अलग-अलग हो जाएंगे। आधे क्रोमोसोम एक तरफ जा रहे हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये इसका एनाफेज का स्टेज था। उसके बाद ये अपोजिट पोल्स पे पहुंचे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, टीलोफेज है लास्ट स्टेज जो कैरियोकाइनेसिस का है, म्यूसिस 1 का लास्ट स्टेज, और साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, एक सेल से 2 सेल बन गए हैं। अब ये जो बनने वाले 2 सेल हैं इन दोनों के अंदर फर्दर डिवीजन होगी, म्यूटेक 2 डिवीजन, सेकंड म्यूसिस। आप देखें जो एक पेयर सेंट्रियोल का था 2 पेयर बन चुके हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह के स्टेजेस हैं। माइटोसिस की एनिमेशन में भी ऐसे ही था। आप देखें कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो रहा है, और अलोंग द इक्वेटर अभी वो मेटाफेज प्लेट के अक्रॉस शो करेंगे। ये देखें ये मेटाफेज प्लेट शो की है जिसके अक्रॉस सारे क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर की डिवीजन हुई है, तो स्पिंडल फाइबर्स के खींचने की वजह से, पुलिंग की वजह से सेंट्रोमियर डिवाइड हुए। आधे क्रोमेटिड एक तरफ, आधे क्रोमेटिड दूसरी तरफ चले गए हैं। अपोजिट पोल्स पे अब वो पहुंच गए हैं, उनके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। अब ये साइटोकाइनेसिस हो चुकी है। इसके बाद वो 4 सेल बन चुके हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूसिस 4 सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं। इट वाज इट्स एनिमेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा बता देता हूं नेक्स्ट प्रोसेस का, जो कि डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिफरेंस देखें माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस के दौरान 2 डाटा सेल बनते हैं एक पेरेंट सेल से, जबकि मियोसिस के दौरान 4 डाटा सेल बनते हैं। दूसरा फर्क, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाटा सेल में जो है वो सेम रहता है जैसा कि पेरेंट सेल में हो, और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है डॉटर सेल्स में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स। ठीक है, माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है जबकि मियोसिस में आधी रह जाती है। तीसरा फर्क, माइटोसिस जो है वो जनरल बॉडी सेल्स में होती है जिनको मैंने सोमैटिक सेल्स का नाम दिया, सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनको, जबकि म्यूसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं एनिमल्स में और स्पोर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। It was about mitosis and meiosis. Now topic is over. You can ask questions. Yes, बेटे। सर आई हैव टू आस्क दैट मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो जब मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई थी तब सर सेंट्रियोल्स और जो मेटाफेज प्लेट है, मेटाफेज प्लेट का कोई जनरल काम है? ठीक है, अलग से वो बता दे, और साथ में सेंट्रियोल्स और हेपोइड शायद में वो कुछ था उसको कर दें डिफाइन। ठीक है, मैं कर देता हूँ। सेंट्रियोल्स बेटे, हर सेल के अंदर पेयर होता है सेंट्रियोल्स का। जब सेल डिवाइड होता है तो वो सेंट्रियोल्स का पेयर सबसे पहले डिवाइड होकर 2 पेयर बनाता है। वो दोनों पेयर अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं
और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स ने अटैच होना होता है। तो सेंट्रियोल्स का ये काम है। उसके बाद आपने पूछा मेटाफेज प्लेट का। क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्टेज के दौरान अलोंग द इक्वेटर एक लाइन के ऊपर अटैच हो जाते हैं, सेंटर में इक्वेटोरियल लाइन, उसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। जस्ट उसको नाम दिया जाता है कि जब क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं एक इक्वेटर के ऊपर तो उसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं, और उसका कोई काम नहीं है। और अपने हैप्लॉइड के बारे में पूछा। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की जो आधी तादाद है उसको हैप्लॉइड कहा जाता है। किसी भी स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो फिक्स होती है। जब म्यूसिस होती है, म्यूसिस के रिजल्ट में जो बनने वाले 4 सेल्स हैं, हर एक के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है, उसे कहते हैं हैप्लॉइड। और जो पूरी तादाद है उसको कहते हैं डिप्लॉइड। ओके, यस। एंड सर मैंने ये भी पूछना था कि स्पिंडल फाइबर क्या है? स्पिंडल फाइबर्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखी हैं जो सेंट्रियोल्स के जरिए बनी हैं, इनको स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल इसलिए कि इसकी शेप स्पिंडल जैसी होती है, जैसा स्पिंडल होता है, ये दरमियान से थिक होता है और एजेस से जो है वो पॉइंटेड होता है। इसकी शेप उससे मिलती है, इसलिए इसको स्पिंडल कहते हैं। असल में फाइबर्स हैं, प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं, ट्यूबुलन प्रोटीन है जिसके ये फाइबर्स बनते हैं, और स्पिंडल से शेप मिलती है, इस वजह से इनको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। और इनका काम क्या है? क्रोमोसोम्स इनके अक्रॉस अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं, और इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की पुलिंग की वजह से जो है क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर्स हैं उनकी डिवीजन होती है और वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। ओके सर। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? नो। ओके, नेक्स्ट। सर ये जो आपने बताया कि जो क्रोमोसोम्स है वो अपने सेगमेंट्स चेंज कर लेते हैं आपस में, सर ऐसा क्यों है कि वो अपने आपस में सेगमेंट्स चेंज करते हैं? यस बेटे, ये म्यूसिस के दौरान होता है प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर का, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले वाला स्टेज था सिनॉप्सिस का, जिसमें पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ये जो सेगमेंट्स आपस में इंटरचेंज करते हैं क्रोमोसोम्स, तो इससे जो जीन्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, और इसके रिजल्ट में वेरिएशंस पैदा होती हैं। पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स के आप देखें कि जो बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो शक्ल और सूरत में बहनें या भाई आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, डिफरेंसेस होते हैं, और उन डिफरेंसेस की यही वजह होती है, ये वेरिएशंस ही हैं जिसकी वजह से वो स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस होते हैं, उनकी पहचान हो सकती है। और सर ऐसा उसमें क्यों नहीं होता माइटोसिस में? माइटोसिस के अंदर ना तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और ना ही होमोलोगस जो पेयर्स हैं उनके दरमियान एक्सचेंज होता है, ना वो एक दूसरे के करीब आते हैं ना एक्सचेंज होता है। बेटे देखें, लेकिन एक मिनट, जो माइटोसिस का काम देखें, उसका काम है ग्रोथ वगैरह, सेल डिवीजन, जैसे ग्रोथ होती है, साइज बढ़ता है ऑर्गेनिजम्स का, तो साइज एक ही ऑर्गेनिज्म का बढ़ना है। एक ऑर्गेनिज्म जब एक बच्चा पैदा हो गया उसके अंदर सेल डिवीजन माइटोसिस ही होती जाएगी, उसका साइज बढ़ता जाएगा। अब उसके अंदर क्या वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट होना है? वेरिएशंस तो उस वक्त तो पैदा होंगी ना जब स्टार्ट होगा, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, वहां पे वेरिएशंस आनी चाहिए, ताकि उन गैमीट्स के आपस में मिलने से जो न्यू इंडिविजुअल बने उसमें वेरिएशंस हों, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आए। माइटोसिस के अंदर वेरिएशंस जो हैं दे हैव नो यूज। सर तो ये जो ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक ही सेल कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है जिनकी डिफरेंट प्रोसेस है? माइटोसिस और म्यूसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में होते हैं। माइटोसिस मैंने बताया जनरल बॉडी सेल्स जिनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स, उनमें होती है, जबकि जो म्यूसिस है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जो स्पर्म्स और एग्स हैं एनिमल्स के अंदर और स्पोर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। नो सर।
नेक्स्ट। सर Yes. मैंने आपसे पूछा था साइटोकिनेसिस और हेरिडिटी, सर ये दोनों क्या था? ये बेटे टोटली डिफरेंट चीजें हैं जिनको आपने पूछा है। साइटोकाइनेसिस जो है ये तो माइटोसिस या म्यूसिस का लास्ट स्टेज है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि साइटोकाइनेसिस जो एनिमल्स के अंदर होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पिचक जाती है अपोजिट साइड से और आपस में मिलकर एक सेल को दो में डिवाइड कर देती है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर में बनती है प्लेट और वो एजेस की तरफ, बाउंड्रीज की तरफ पहुंचकर एक सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जबकि जो हेरिडिटी है, it is the transmission of characteristics from parents to offsprings, from one generation to next generation. These things we are to study in next lecture. Heredity is quite different thing. Your question is clear? Yes. Any other question? Next. सर मैंने आपसे पूछना था, वो जो एक होल था, मतलब जब आपने म्यूसिस और माइटोसिस की डायग्राम दिखाई थी तो सर उसमें एक छोटा सा होल था, उसका नाम आपने क्या बताया था? छोटा सा होल था? जी सर उस डायग्राम में था। क्रोमोसोम्स का तो नहीं शो किया? नो सर, सर वो एक क्या कहते हैं सर, एक वो क्या कहते हैं जो जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वो सेल मेम्ब्रेन, वो सारा था सर उस डायग्राम में। अच्छा, शुरू वाली डायग्राम में था। न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस। और पोर्स, न्यूक्लियोपोर्स आपने देखे होंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थे। ठीक है सर। न्यूक्लियस के बाद जो बाउंड्री होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो सुराख होते हैं उन्हें न्यूक्लियोपोर्स कहा जाता है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो मैंने एक और भी बात पूछनी थी, उसी के पास अलग अलग, यानी उनको उनके ट्रैक्स पे भी हमने डिफरेंट नहीं किया, यानी सारा कुछ एक अभी उनको डिवाइड करना है। वो जनरल बॉडी सेल्स बेटे जितने भी बॉडी के हैं उनमें डिवीजन जो है ये माइटोसिस होती है, और उनकी डिवीजन के रिजल्ट में क्या होता है? ग्रोथ होती है। जैसे मैंने ये सर नहीं, आपको बताया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, यानी जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 चीजें हैं, अब वो 10 चीजों को इकट्ठा करो तो वो सोमेटिक सेल्स हैं अभी विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ये है सोमेटिक सेल्स। 10 चीजें, अब दोबारा एक्सप्लेन करना, 10 चीजें क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 10 चीजें हो, हम उनको कलेक्टिवली एक जगह रखें और फिर अभी हमने उन्हें विदाउट डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कलेक्टिवली वो चीजें होंगी वो सोमेटिक सेल्स हैं। बिल्कुल ऐसे बड़े, बट बेटे हमारे अपने जिस्म को देखें, हमारा पूरा जिस्म जो है ये सेल से बना है, और ये सारे सेल्स जो हैं ये कहलाते हैं सोमेटिक सेल्स। ओके सर। और सिर्फ सर जो गैमीट्स होते हैं ना, गैमीट्स, यस, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म लाइन सेल्स होते हैं। उनके अलावा पूरी बॉडी के सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। ओके सर, मैंने आपसे ये भी कहना था, प्लांट्स के अंदर। ओके सर, मैंने आपसे पूछना था कि सर आपको कहना था कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो क्रोमोसोम्स और जो प्रोमो वाला एक था ना, वो प्लीज आप कहीं इस तरह लिख के बता दें। उसमें काफी कंफ्यूजन होती उसके जब वो बता रहे थे, क्योंकि एनिमेशन है थी तब वो उनकी डिवीजन समझ नहीं आई थी। क्रोमोसोम्स की? यस सर, वो यस एनिमेशन समझ नहीं आई या उधर आप टॉपिक के अंदर बात करें? मैं आप सर वो जब उनकी जो टाइप्स थी ना, यानी पहले 1 से 2 फिर 2 से 3, वो नहीं समझ आई मुझे। ओके, चेक इट।
ये देखें, यहाँ पे ये सेल है, आप इस डायग्राम को देख रही हैं? यस। देखें ये सेल है इंटरफेस के दौरान, इसके अंदर देखें 2 क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं। यस। सिंगल हैं जो कि एक एक क्रोमेटिड वाले हैं। इसी के दौरान आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि ये इनकी डुप्लीकेशन हो गई है। हर क्रोमोसोम जो है उसके 2 क्रोमेटिड हैं, और ये सेंटर में जो आप होल देख रही हैं, ये जो पोजीशन है ये सेंट्रोमियर कहलाती है। जिस जगह ये दोनों क्रोमोसोम आपस में, दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच हैं, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड आपस में अटैच हैं इस जगह। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, इसको मैं स्पॉटलाइट से इंडिकेट कर देता हूं। ये देखें, ये यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंट्रोमियर है, जिस जगह ये दोनों क्रोमेटिड अटैच हैं। इसी तरह ये वाला क्रोमोसोम भी 2 क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है। क्रोमेटिड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा ये देखिए, ये पूरा लेंथ में एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। यहाँ पे आप देखें तो ये इधर जिसके ऊपर मैं मूव कर रहा हूं, ये सारा एक क्रोमेटिड है। ये इधर दूसरा जो है ये दूसरा क्रोमेटिड है, और दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर वाली जगह पर अटैच है, सेंट्रोमियर के जरिए अटैच है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपीयर हो रही है। अगले स्टेज में देखें, जो न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक पेयर होता है वो डिवाइड होकर 2 पेयर बनाते हैं। अब ये दोनों पेयर अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, और इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बना दिए हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स बना दिए हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पे देखें अटैच हो रहे हैं। ये माइटोसिस के स्टेजेस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारे स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज में देखें कि इनका जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है, और सेंट्रोमियर के डिवाइड होने का रिजल्ट क्या होता है आगे, सेंट्रोमियर के डिवाइड होने से जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। आधे क्रोमेटिड देखें एक साइड पर, और आधे क्रोमेटिड्स दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और अगले स्टेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जो कि इसकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, कि सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पिचक कर 2 सेल बना देती है। हर सेल से 2-2 सेल बन गए हैं। ये रिजल्ट था इसका माइटोसिस का, कि एक पेरेंट सेल से 2 डाटा सेल बने हैं, और क्रोमोसोम की तादाद देखिए सेम है, जितनी डाटा सेल में थी, पेरेंट सेल में थी, उतनी ही हर डाटा सेल में है। हाँ जी, अब ये माइटोसिस के स्टेजेस क्लियर है आपको? यस सर, थैंक यू। सर आपसे एक बात पूछनी थी कि सर ये जो पहला इंटरफेस का स्टेप है, सर इसके अंदर ये जो 7 क्रोमोसोम के साथ एक छोटा सा बॉल टाइप सी चीज है, सर ये न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस है। सर कोई पार्ट है इसके अंदर, ये इस पूरे प्रोसेस यहाँ सेल डिवीजन में इसका रोल नहीं है, लेकिन जो सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं उसमें इसका रोल है। सर और जो इंटरफेस राइबोसोम जो है ना, राइबोसोमल आरएनए, उसकी फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। यहाँ पे इसका काम नहीं है। हाँ जी आगे। सर और क्या कहते हैं, जो इंटरफेस और एनाफेज, ये सारे माइटोसिस के फर्दर स्टेप्स हैं। इंटरफेस बेटे, माइटोसिस हो या मेयोसिस हो, पहला स्टेज इंटरफेस होता है, जिसमें सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को फास्ट सेल डिवीजन। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके स्टेजेस हैं 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 स्टेजेस हैं, जो कि आपने एनिमेशन में भी देखे, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद आती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, 2 सेल बन जाते हैं हर सेल से। कोई और क्वेश्चन? तो इन स्टेजेस के अंदर ये जो एनाफेज और जो भी टेलीफेज है सर, इसके अंदर कोई इनके ये सब अलग टाइप्स है प्रोसेस की, या उसके अलग अलग स्टेजेस है कि ऐसे ये पहले होगा फिर ये होगा? देखिए न्यूक्लियस की डिवीजन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। शुरू में पहला स्टेज क्या था कि क्रोमोसोम जहां पे ये डुप्लीकेट हुए हैं उसको हमने कहा था प्रोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, ये प्रोफेज है। फिर जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं
और क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाफेज। फिर एनाफेज जो होती है उसको हम कहते हैं, जबकि उस स्टेज को कहते हैं जिस वक्त क्रोमोसोम्स डिवीजन हो जाती है सेंट्रोमियर्स की, स्पिंडल फाइबर के खींचने की वजह से सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं आधे एक तरफ आधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। और टीलोफेज हम उस स्टेज को कहते हैं जब ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। फिर सेल की जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस है। नेक्स्ट, ये क्लियर है अब? यस सर। आपको इसकी एनिमेशन शो कर दूं? यस सर, एक दफा दोबारा दिखाइए। क्लास का बैंड नहीं है। हाँ जी बेटे, आपने बताना है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी? यस सर। ये देखिए, ये एनिमेशन है। देखें, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा है, ये प्रोफेज है। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो गई है। एनिमेशन नहीं दिख रही, नहीं दिख रहा। स्क्रीन पॉज है। ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम अटैच हो चुके हैं कैनेटोकोर फाइबर्स के जरिए। ये मेटाफेज है जहां पे, एक मिनट एक्सप्लेन कर दूं मैं। उसके बाद ये एनाफेज में देखें डिवीजन हो गई है। सर आपकी स्क्रीन से शो हो रही है। सर कुछ एनिमेशन नहीं दिख रही। एनिमेशन नजर नहीं आ रही है आपको? नो सर। नो। हाँ जी, अब आप देखें। अभी भी नहीं। अभी नजर नहीं आ रही? आपने नो सर। सर आपकी शेयर स्क्रीन पॉज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल स्क्रीन शो हो रही है मेरे। हमें नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी दोबारा देखें। सर अब दिख रही। आप ठीक है? सर यस। ओके, चलिए देख लें अब। ये देखिए, कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए हैं। ये प्रोफेज है। उसके बाद ये प्रो मेटाफेज, यानी मेटाफेज से पहले वाला स्टेज, स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं, क्रोमोसोम अटैच हो रहे हैं। ये मेटाफेज है जिसमें आप देखें ये मेटाफेज प्लेट शो करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, ये मेटाफेज प्लेट है जिसके ऊपर आप देखें सारे क्रोमोसोम अटैच हो चुके हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ। अब ये सेंट्रोमियर की डिवीजन हो गई है, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अब वो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है साइड्स पे। अब आगे साइटोप्लाज्म की डिवीजन शो की जा रही है जो कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है। हाँ जी बेटे, आप क्लियर है ये? यस सर। सर आप ये एनिमेशन भी भेज दीजिएगा। एनिमेशन ये उसमें वीडियो में शामिल होगी जो आपको मिलेगी। ओके सर। हाँ जी, आप स्क्रीन आप देख रही हैं? यस सर। ये म्यूसिस के स्टेजेस को भी देख लें एक दफा। देखिए, ये इंटरफेस है जिसमें ये 4 क्रोमोसोम शो किए गए हैं। आगे देखें पहले कितना, अब ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 यूं होगा। प्रोफेज 1 में देखें अब ये क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स बन चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जिसको सिनैप्सिस कहा था। और यहीं पे इनके सेगमेंट्स इंटरचेंज होते हैं जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाल हो रही है, न्यूक्लियोलस खत्म हो गया है। अब ये मेटाफेज है जिसमें आप देखें पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हैं जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो चुके हैं। और उसके बाद एनाफेज में क्या हुआ है कि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि जो पेयर क्रोमोसोम के थे वो डिवाइड हुए हैं। आधे क्रोमोसोम
एक पोल की तरफ, आधे दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स के खींचने की वजह से। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसके पिचकने से जो सेल है, एक सेल है वो दो में डिवाइड हो गया। फिर सेकंड म्यूटेक डिवीजन आती है जिसके प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ये स्टेजेस हैं। और ये बिल्कुल माइटोसिस वाले स्टेजेस होते हैं। हर सेल से दो दो सेल आगे बनते हैं। अब यहाँ पे देखें क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में थे दो दो थे, तो यहाँ भी दो दो ही हैं। जबकि आप शुरू में देखें जो पहला पेरेंट सेल था उसमें 4 क्रोमोसोम थे, अब इन डाटा सेल में दो दो क्रोमोसोम है, यानी तादाद आधी रह गई है। हाँ जी, म्यूसिस क्लियर है? सर तो फिर आगे जाके इनके जो डॉटर सेल्स हैं इनके क्रोमोसोम्स कितने 4 हो जाएंगे? हाँ जी, देखिए बेटे, ये या तो स्पर्म्स होंगे या एग्स होंगे। अब एक स्पर्म और एक एग ने आपस में मिलना है तो जाइगोट बनना है। तो आधे क्रोमोसोम स्पर्म के हो गए, आधे एग के हो गए, जो आपस में मिले तो डिप्लॉयड तादाद पूरी होगी स्पीशी की। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। एनिमेशन शो कर दूं इसकी अब? सर कर दें। ओके, मैं म्यूसिस की एनिमेशन अभी शेयर करता हूं। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये देखें, ये म्यूसिस के स्टेजेस हैं। ये देखें, एक सेल से दो सेल बने हैं, फिर उनमें से हर सेल से आगे दो दो बनेंगे, तो टोटल 4 सेल बन गए हैं। ये सेकंड म्यूटेक डिवीजन है। नीचे माइटोसिस को शो किया जिसमें देखें एक सेल से दो सेल बने हैं और क्रोमोसोम की तादाद भी यहाँ सेम है जो पेरेंट सेल में थी। जबकि उधर म्यूसिस के अंदर आप देखें 4 सेल जो बने, क्रोमोसोम की तादाद आधी रह गई है। अगला स्टेज देखें आप। ये आपको इंटरफेस शो की गई है जिसके अंदर ये G1 फेज, S फेज और G2 फेज शो किए गए। आपके यहाँ डिटेल नहीं है, आप हायर क्लास में जाएंगे, जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल से जैसे पढ़ेंगी। G जो है गैप के लिए स्टैंड करता है, S जो है वो सिंथेसिस है, और अगला G2 वो फिर गैप के लिए है। इसमें प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है, मुख्तलिफ एंजाइम बनते हैं और सेल कंटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। सेल प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को डिवीजन के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस देखें। ये क्रोमेटन मटेरियल की कंडेंसेशन हो रही है। डीएनए रेप्लिकेशन होती कॉपीइंग। सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए हैं। एक सेंट्रोमियर के साथ जो दो क्रोमेटिड अटैच होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। एक क्रोमोसोम के साथ, एक सेंट्रोमियर के साथ जो क्रोमेटिड अटैच होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और क्रॉसिंग ओवर में जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर आपस में अटैच होते हैं उनमें जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है। इन एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड ये आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये टर्म्स हैं जो बायोलॉजी में यूज होती हैं, साइंस में। आप देखें यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर बन है, ये मेटाफेज 1 है जो शुरू हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर शो की जा रही है। देखें एक्सचेंज हो गया सेगमेंट्स का, कलर से वाजे कर दिया उन्होंने। आगे देखें ये सेंट्रियोल्स के दो पेयर बने हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, डिसॉल्व हो गया है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेंट्रियोल के पेयर अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। उन्होंने स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है और क्रोमोसोम जो कि अब वो टेट्राड्स बन चुके हैं। टेट्रा कहते हैं 4 को। तो दो दो होमोलोगस क्रोमोसोम चुके मिले हुए हैं और हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड हैं, तो टोटल 4 क्रोमेटिड हुए, इसलिए इनको टेट्राड्स कहते हैं। ये माइटोसिस में और मियोसिस में फर्क थोड़ा शो किया गया है कि माइटोसिस में जो एक ही क्रोमोसोम का है कैनेटोकोर है उसके साथ कैनेटोकोर फाइबर मिलते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर
होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर जो है वो नाम का मेटाफेज प्लेट अरेंज हुआ है। और अगले स्टेज में देखें एनाफेज के अंदर, एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स के खींचने की वजह से क्रोमोसोम के जो पेयर थे वो अलग-अलग हो गए हैं। अब ये पेयर अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस हुई है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। ये देखें एक सेल से अब 2 सेल बन रहे हैं, साइटोकाइनेसिस शो की जा रही है। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है क्लीवेज फरो से। अब हर बनने वाला सेल जो है इसमें आधी तादाद है क्रोमोसोम्स के एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अब नेक्स्ट स्टेज में देखें कि इनमें से हर सेल में जो सेंट्रियोल हैं वो फिर डिवाइड होकर 2 पेयर उन्होंने बनाए हैं, वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बना दिए हैं और बिल्कुल माइटोसिस की तरह अब क्रोमोसोम यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो रहे हैं। ये अब अलॉन्ग द मेटाफेज प्लेट सारे क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। अब सेंट्रोमियर की डिवीजन होगी। इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अब खींचेंगे सेंट्रोमियर को अपोजिट पोल्स की तरफ। देखें सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए हैं और क्रोमेटिड आधे एक तरफ और आधे दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस, ये टेलोफेज 2 कंप्लीट हुई है। अब साइटोकाइनेसिस जो है वो हो रही है दोबारा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है साइटोकाइनेसिस 2 में। तो आपने देखा कि अब ये 4 सेल बन गए हैं, एक पेरेंट सेल से 4 सेल बन गए हैं। हाँ बेटे, क्लियर है चीजें ये? यस सर। आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज।